ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਯਾਦਾਂ ਜੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਗਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮਹੰਤ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੀਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਚਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਹਵਨ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਵਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ITI ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਸੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਗਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਬੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਨ ਐਂਡ ਫੂਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤਿਆ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੇਢੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਵੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਕਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਹੈ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਖੇਡ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਵੇਦ, ਹਕੀਮ, ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘੜੀ ਨੂੰ।
एक दिन इस तरह मैं उत्थे पार्क में बैठा सी, तो मेरे भैन जी ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ। मैं क्या सतवचन भैन जी, मैं भैन जी सतवचन कहता, लेकिन अर्ज किवें करी दी सी, की करी दी सी, ये दिल में फिर थोड़ा जिन्ना हैगा सी। मैं उस तो अगले दिन सवेरे आसा दी वार दे विच उत्थे पहुँच गया जी रमेश नगर गुरुद्वारे। उत्थे कोठी जदों गया मैं तो उत्थे सारे पैरे वाले कह रहे सी परां हो जाओ सच्चे पातशाह जी आ रहे हैं, परां हो जाओ साइड ते हो जाओ, पैरे वाले आ रहे हैं। पैरे वाले ने कहता सच्चे पातशाह जी आ रहे हैं, लेकिन मैं अर्ज करनी सी, मेरा मन बहुत दुखी हैगा सी। मैं कहा जी हुण अर्ज ना होई तो बड़ा मैं गोडियां दे भार बैठ गया। इन्नी देर नूं सच्चे पातशाह सतगुरू जगजीत सिंह जी ने दर्शन दिते तो मैं मत्था टेकिया, हथ जोड़े, अखां दे विच मेरे अथरू सी। मैं अज भी जो याद करदा मेरी अखां भर आउंदियां ने। मैं कहा सच्चे पातशाह जी मेरी सिंघणी दे पेट दर्द नहीं जा रही जी, आप जी कृपा करो, सारे डॉक्टर हार गए ने, किसी को इलाज नहीं हो रहा जी। सच्चे पातशाह जी ने जो मेरे वाल देखा, इन्नी खुशी दे नाल मैनू कहंदे तू कल सवेरे अपनी सिंघणी नूं नाल लैके ते भैणी साहब आ जा। मैं सतवचन किया। अगले दिन मैं सवेरे अपनी सिंघणी नूं भैणी साहब लैके आ गया। गेट ते दस्सिया, मैं कि जी मैं इत्थों दिल्ली तो फन एंड फ्रूट तो आया वां, तो पैरे वाले ने मैनू रोकिया नहीं, कहंदे हाँ सच्चे पातशाह जी तैनूं याद करदे पे ने, तुसीं चले जाओ। सच्चे पातशाह जी उत्थे खड़े सी, मैं दोनों ने असीं नमस्कार कीती, मत्था टेकिया। तो उन्होंने एक उत्थे कोई शायद मे बी मड़ियां दे विच कोई डॉक्टर सी, वो अचानक उत्थे खड़ा सी जां बुलाया गया सी पहलां ही। उन्होंने हुक्म किया कि ये दिल्लियों आया साहब सिंह, तेरी सिंघणी दी पेट दर्द हो रही है, तो आप ये पेट दर्द ठीक करनी है, तो डॉक्टर साहब आप कृपा करो। उन्हें हथ जोड़े गरीब ना, आप जी कृपा, आप जी ने कृपा करनी है। चलो हुण मैनूं नहीं पता कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने उत्थे देसी इलाज किया कि खंड की पुड़ी दी की दी। सच्चे पातशाह अकाल पुरख जो उन्होंने एक बार मेहर पै जाए, दर्द तो वैसे ही ठीक हो जानी सी। तो सच्चे पातशाह जी ने मैनू हुक्म किया कि साहब सिंह तेनों नितनेम करना पैना, 1 महीना तो सेवा करनी पैनी है इत्थे। मैं कहा सतवचन सच्चे पातशाह जी। हुण साहब सिंह ने कदे नितनेम किया होवे, कदे चौंकड़ा मार के बैठा होवे, तो फिर एक जट बूट जां समझ लो कि इस चीज़ नूं दूरों ही हैगा सी। तो जो मैं नितनेम च जाना हाँ, तो मेरे कदे मैं पैर इस तरह कर रहा, कदे इस तरह कर रहा, मतलब बैठा नहीं सी जा रहा, लेकिन एक दिलों सी कि सच्चे पातशाह बख्शिश करन मेरी घर दी पेट दर्द ठीक होए। पर बख्शिश की सच्चे पातशाह जी ने, वो हफ्ता 10 दिन दे विच वो दर्द कित्थे गई, वो सोजन कित्थे गई, वो अकाल पुरख जानते हैं, वो खत्म हो गई। मैं अपनी सिंघणी नूं पुछया, मैं कहा ठीक है, कहंदे ठीक है। मैं कहा आपां ड्यूटी ते चलीए अपनी ते सच्चे पातशाह जी दा धन्नवाद करिए। पहली गल असीं धन्नवाद की करना जानते हैं, असीं धन्नवाद का लफ्ज़ बहुत छोटा है। सच्चे पातशाह जी दे कोल गए असीं धन्नवाद करने वास्ते, ते सच्चे पातशाह जी मैनू अज भी याद है कि पिपल जड़ा कोठी दे लागे पिपल उत्थे खड़े सी, ते मैं जाके नमस्कार की सच्चे पातशाह कि हुण मेरी सिंघणी बिल्कुल ठीक है, आप जी दा धन्नवाद करना आए हैं जी। अजे असीं इस बारे बचन बिलास कर रहे सी, तो उस टाइम उत्थे कोई डेरा प्रबंधक सी, मैं नाम भुल गया जी, वो किसी शरीर नूं नाल लैके आए जिन्हां दी कि 10-15 साल विआह नूं हो गए होणगे, शादी नूं हो गए होणगे, तो उन्हां दे घर कोई औलाद नहीं सी हैगी। उन्होंने अर्ज की सच्चे पातशाह जी इन्हां नूं 10-15 साल हो गए ने, तो आप जी कृपा करो कि इन्हां दे औलाद होवे। तो गरीब नवाज, क्योंकि मैं कई चीज़ां जिहड़ियां ने ना जिस अर्ज करनी होवे, क्योंकि जो मेरे पेट दर्द मेरे घर दी सिंघणी दे हो रही सी, तो क्योंकि मेरे भी घर औलाद नहीं सी हैगी, 1.5 साल हो गया सी, लेकिन वो जिहड़ी अर्ज करनी सी वो तो मैनूं चेता ही भुल गया सी। जदों वो सिंह ने, जदों डेरा प्रबंधक ने वो सिंह दी अर्ज कर रहा सी, तो सच्चे पातशाह जी दे कोल अखबार पिया होया सी, उन्होंने उन्होंने मोड़ के ते मेरे लक ते मारिया, कहंदे मैं पुत्र दे सारिਆਂ ਨੂੰ देने ने,
तो मैं कोटि कोटि मतलब उन्हों का धन्यवाद सच्चे पातशाह जी का कि मंगण कोई आया, उत्थे जिन्ने भी शरीर खड़े होए सी सच्चे पातशाह सारिਆਂ ਨੂੰ पुत्र दिता और समय के मुताबिक ठीक मेरे घर भी सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की, मेरे पुत्र हो गया जिसका नाम जी जस्सा सिंह, आप जी सच्चे पातशाह जी ने रखा सी। उस तो बाद असीं दिल्ली चले गए जी। समा इस तरह बीतता गया। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी ते किते जाना सी ते मैं परचेज और मार्केटिंग ही देखदा हुंदा सी। ते मैं अपना गड्डी लैके टेढ़ी पग बद्धी हुई ग्रे कलर की जो मेरे मतलब ऑफिस की यूनीफॉर्म सी, तो मैं अपने मार्केटिंग वास्ते जिवें दिल्ली कापा सेटा तो दिल्ली जाना हुंदा सी, चांदनी चौक रमेश नगर वाले पासे इधर जा रहा सी। तो मैनू नहीं पता कि सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह जी उधर रमेश नगर गुरुद्वारे आए हुए हैं। तो मैं जदों चांदनी चौक नूं गड्डी लैके जा रहा सी ते एक थोड़ा जिन्ना मैनू हलूंगला जिहा आया कि मैनू नहीं पता लगा कि मेरी उस टाइम गड्डी कौन चला रहा जी। मैं जदों थोड़ी देर तक देखा तो मेरी गड्डी जिहड़ी है रमेश नगर गुरुद्वारे लागे खड़ी है जी, और उत्थे साध संगत नामधारी इन्ने खड़े ने मतलब जा रहे हैं। तो मेरे को रहा नहीं गया, मैं इस तरह पहला तो होया, मैं क्या जी सच्चे पातशाह जी आए हुए हैं। सिंह ने कहा तुहानूं पता नहीं सच्चे पातशाह जी आए हुए हैं। मैं कहा अच्छा। मैं फटाफट उतरिया, पार्किंग ते लगाई गड्डी, जो तुरन लगा तो फिर डरिया, रुकिया अंदरों डर कि मैं नामधारी कपड़े तो पाए नहीं, सच्चे पातशाह जी ने मैनू अगर इस तरह कहता तो मैनू डांटणगे, पर लेकिन दिलों प्यार जिहड़ा सच्चे पातशाह जी का खिंच के लैके आ रहा सी, कोई शक्ति जिहड़ी कि सच्चे पातशाह जी अकाल पुरख ने आप ही कृपा की सी। मैं चला गया, जदों रमेश नगर गुरुद्वारे मैं मत्था टेकन गया तो सच्चे पातशाह जी ने मेरे वाल देख के तो मैं नमस्कार जिवें की, अंदरों फिर भी डर ते रमेश उन्होंने अपने रिशपाल जी नूं कहा कि साहब सिंह नूं कहो कोठी आ जाए। जो रिशपाल भाजी ने इन्नी गल कही कि सच्चे पातशाह जी तुहानूं याद करदे पे ने कोठी, मैं होर डर गया जी। साध संगत जी मैं तुहानूं दस नहीं सकदा, जो मैं कोठी गया अंदरों फिर डर कि मैं सच्चे पातशाह जी की बचन करनगे। मैं चला गया, सच्चे पातशाह जदों आए तो मैनू देख के कहिंदे भी तू साहब है की बनया होया। मैं इस तो पहला कि सच्चे पातशाह जी होर बचन करदे, मैं इस तरह हथ जोड़ ले। मैं क्या गरीब नवाज मैं तो तुहाडा ही हैगा वां, और मैं तो अपनी ड्यूटी ते जा रहा सी जी, ये तो मेरी यूनीफॉर्म हैगी है, तो मैनू बख्श लो। मैं आया तो अपने काम वास्ते सी, मेरे लेकिन दर्शनां दी मैं दर्शन करने सी आप जी दे, बस आप जी बख्शिश करो कि आप जी इस तरह दर्शन मैं करदा रहां जी। सच्चे पातशाह जी मुस्करा के रिशपाल जी नूं कहिंदे, देख रिशपाल इन्हें मैनू कुछ कहण तो पहला ही माफ़ी मंग ली, लेकिन सच्चे पातशाह जी ने बड़े मैनू मतलब बहुत कहना कि तू टेढ़ी पग ना बन्निया कर, सीधी बन्निया कर। फिर सच्चे पातशाह ने सत वचन कह देना करना। फिर असी मैं तो मेरी सिंघनी जदों ही पता लगना कि सच्चे पातशाह जी आ रहे हैं, असी क्योंकि मेरे को कोई ना तो स्कूटर सी ना मोटरसाइकिल सी। एक बार इस तरह याद है मैनू कि सच्चे पातशाह जी उत्थों जदों रमेश नगर आए ने तो असी उदन मीह पै रहा सी जी बहुत ज़्यादा, तो मैं सिंघनी नाल लिया कहते पहुँच जावांगे। मैं कहा चलो असी, साडे कपड़े जिहड़े चिट्टे सी वो सारे मतलब खराब हो गए, लग्या होया सी। कोठी गए दर्शन करने वास्ते, तो रिशपाल भाजी भी कहते अज तुसीं चलो लेकिन लिबड़ तो किवें गए हैगे हो। मैं कहा भाजी तुहानूं पता मेरे को गड्डी तो है नहीं कोई भी, तो जिवें भी हैगा आ गए बस सच्चे पातशाह दर्शन करने। इन जदों सच्चे पातशाह जी जदों आए ने तो मैं मत्था टेकिया, तो रिशपाल नूं कहंदे भी आपां साहब नूं ना स्कूटर लैके देना मैं, क्योंकि जानी जान सच्चे पातशाह जी। मैं तो कुछ अर्ज करदा ही नहीं सी हैगा कि मैनूं सच्चे पातशाह दो। सच्चे पातशाह जी अपने आप ही सब कुछ जानी जानते होंदे मैनूं स्कूटर दिता उन्होंने। असीं आउंदे गए, एक बार सच्चे पातशाह जी ने इत्थे भैणी साहब असीं दर्शन मेला करने वास्ते आए। सच्चे पातशाह कहंदे भी तुहानूं ना असीं बैंकॉक लैके जाना है। मैं कहा गरीब नवाज जिवें आप जी दी रजा जी। कहंदे तेरे को पासपोर्ट हैगा? मैं कहा हैगा। कहंदे सिंघनी कोल? मैं कहा सिंघनी कोल तो नहीं हैगा जी। जिहड़ा कि इंपॉसीबल सी, महीना महीना 2-2 महीने पासपोर्ट नूं लग जांदे सी। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी सिंघनी का पासपोर्ट भी आ गया और सानूं सच्चे पातशाह जी बैंकॉक भी लैके गए। और फिर सानूं जिहड़ा नाम उन्होंने दिता सच्चे पातशाह जी ने, वो अज भी करना च गूंजदा। जोड़ी कह के सच्चे पातशाह बुलाउंदे हुंदे सी कि जोड़ी कित्थे हैगी है, जिहड़े फन एंड फूड ते आउंदे हुंदे ने। सच्चे पातशाह जी इन्ने कि किरपा करते हुंदे सी मेरे ते, इन्ने करते हुंदे सी। लेकिन मैं उस चीज़ नूं मैं अज भी कहांगा कि मैं सच्चे पातशाह दी कई चीज़ां मैं नहीं मन्नियां। दुबई दे विच कोई सच्चे पातशाह जी आए ने, सन 2009 की गल है, तो उस दिन भी मैं मार्केटिंग के काम दे विच अपना रसल खेमा तो दुबई किसी काम वास्ते गया सी।
तो गरीब नवाज जी दुबई दर्शन दे रहे सी तो मेरी ਸਿੰਘਣੀ मेरा बेटा होर भी साध संगत जी हैगी सी वो उत्थों मेरे ਜਿਹੜੇ जीजा जी सरदार संतोख सिंह जी चावला जी उन्होंने भेजती सी तो मैंने फ़ोन करता कि सच्चे पातशाह आए तो चला जा। मैं क्या मैं भाजी मैं चला तो जावां लेकिन मैं पग टेढ़ी बद्धी हुई है। कहते कोई गल नहीं तू अंदरों तो मनदा ना सच्चे पातशाह जी। मैं क्या जी हैगा पर मैनू उन्होंने फिर डांट देना। मैं कहते तू चला जा। तो मैं चला गया जी उत्थे लोकेशन तो पता ही सच्चे पातशाह कृपा ने मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस हैगा सी। मैं चला तो गया जी उत्थे तो ਸਿੰਘਣੀ भी आ गई मेरी। मैंने कहते तुसीं अज नामधारी पग बन लैनी सी। मैं क्या मैं तो मार्केटिंग च आया होया सी लेकिन मैं उन्हें चिट्टी पग बद्धी सी लेकिन टेढ़ी बद्धी हुई सी। जो मैं गया तो रछपाल भाजी फिर मैंने मिल गए क्योंकि प्यार भी जिवें सच्चे पातशाह करते सी रछपाल भाजी ने भी बहुत प्यार करते सी। कहते तू साहब तू मुड़दा नहीं हैगा ना पग फिर टेढ़ी बद्धी। मैं क्या भाजी हुण मैं तुहानूं की दस्सां मैं तो अपने मार्केटिंग के काम च आया सी। कहते चल ठीक है फिर हो जा अगे सच्चे पातशाह याद करते पे ने। असीं जो मत्था टेकिया तो इन्नी देर में मेरी फोटो क्लिक हो गई। वो अज भी मेरे को निशानी सच्चे पातशाह जी हैगी है। असी मैं मेरी ਸਿੰਘਣੀ तो मेरा बेटा जस्सा सिंह असी तिन्ने जने बैठे हैं क्लिक हुई तो मैनू कहंदे तू पग जी हैगी है क्यों नहीं बनता। मैं क्या सच्चे पातशाह मैं तो अज फिर हुण आप जी ने कृपा करनी है जदों भी करनी आप जी ने कृपा करनी है। और लास्ट सच्चे पातशाह जी ने मेरे बचन बिलास हुए सी उत्थे मेला भी 2-3 दिन होया। मैं तो मेरी घर दी ते मेरे बेटे ने असी 2-3 दिन सानू नहीं पता लगा कि असी प्रशादा छकिया सोए हैं कि होए हैं। सच्चे पातशाह की बख्शिश हैगी सी ये चीज़। लेकिन इस चीज़ को मैं अज भी कहांगा कि इस लिबास में लियाउण वाले हाजरा हजूर सतगुरु उदय सिंह जी है। सन 2017 दे विच मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया सी बहुत बड़ा। मैं दिल्ली सी ते एक्सीडेंट चंडीगढ़ होया सी जी। उत्थे जदों एक्सीडेंट हो गया जी तो मैं नूं पता दस्या मेरे किसी फ्रेंड ने कि ऐसे तुहाडे बेटे का एक्सीडेंट हो गया लेकिन उन्हें मैनूं न्यूज़ इस तरीके नाल सुनाई है कि जिवें मेरा बेटा इस दुनिया च नहीं हैगा। लेकिन एक विश्वास से सच्चे पातशाह जी कि सच्चे पातशाह अगर तू जस्सा सिंह नूं देण वाला तू ही है तो उन्होंने बचाउण वाला भी तू ही हैगा। लेकिन उत्थों मैं जदों तुरन लगा अपने जीजा जी नूं दस्सिया मैं कहा भाजी इस तरह गल हो गई जे मैनूं नहीं पता मेरा बेटा हैगा कि नहीं हैगा। कहंदे कोई गल नहीं तू आ मेरी गड्डी फड़ ते फटाफट तू चंडीगढ़ नूं तुर पै। फिर मैनूं फ़ोन करता कहंदे बेटा तू जाई ना। मैं सर की गल हो गई। कहंदे तू तेरा दिल बहुत छोटा हैगा तो ये ना होए कि तू उधर जा रहा तेरा खुद एक्सीडेंट हो गया तेरे नाल मैं चलदा मैं ड्राइवर लैके चलदा। जदों मैं चंडीगढ़ आया जी इत्थे भाजी हुणां दे नाल ते मेरे बेटे दा जिहड़ा चेहरा सी वो वेखण लायक नहीं सी हैगा। एक किस्म दा वाकई वो मतलब जिस तरह हुंदा कि है ही नहीं है। सच्चे पातशाह मैं याद किया मैं सच्चे पातशाह जिवें दिता है जस्सा सिंह इन्हूं तू आप ही बचा। असीं उत्थे भाजी ने मेरी ਸਿੰਘਣੀ ने अर्ज की सतगुरु उदय सिंह जी नूं सच्चे पातशाह हुक्म किया कि इन्हूं फटाफट अपोलो च लैके आ जाओ। असीं उत्थों आए जी इत्थे सिद्धे भैणी साहब भी आ गए। सच्चे पातशाह सतगुरु उदय सिंह जी दे दर्शन वास्ते कि इत्थों हो के फिर चलते हैं जी। तो बेटा मेरा इस तरह बस इस तरह करके लम्मे इस तरह लेटा होया तो इसदा चेहरा देखने वाला नहीं सी हैगा। मेरे सच्चे पातशाह ने आउणा सी तो मैं सतगुरु जगजीत सिंह जी दा मंदिर है उत्थे अरदास की सच्चे पातशाह अगर तू अज भी मेरे कोल है हाजरा हजूर है सतगुरु उदय सिंह जी दी जोत है हो तो मेरे बेटे नूं दूजा जन्म लै दिओ। मैं अपनी बाकी दी जिंदगी सारी भैणी साहब दी सेवा करांगा। इन्नी गल करके अरदास करके जो मैं गया सच्चे पातशाह जी आ गए। गरीब नवाज जी ने जस्सा सिंह दे हत्थ फेरिया सिर ते कहंदे साहब सिंह ठीक तो हैगा वा की होया इनू तू एवें उदास हो रहा मैं चल फिर भी फार्मेलिटी वास्ते जाना तो मैं उत्थे करतार नूं फोन करतार भाई नूं उन्होंने क्या हुक्म किया कहंदे उत्थे अपोलो विच लै जाओ इहदा इलाज शुरू करवा दिओ। हफ्ते दिन दे विच सच्चे पातशाह अकाल पुरख सतगुरु धन धन सतगुरु उदय सिंह जी ने उहदा जिहड़ा चेहरा सी वो बिल्कुल जिवें पहलां सी सेम टू सेम करता उवें दा उवें। असीं धन्नवाद करने वास्ते जदों मैं इत्थे आया सच्चे पातशाह जी दे कोल मैं विरागी हो गया। मस्ताने सुनी दे सी पर मैनूं दस्सण वाले दसदे ने कि साहब सिंह तेरी उदों जिहड़ी कंडीशन सी ना तूं मस्तानिया तो भी वध हो गया। सच्चे पातशाह दा धन्नवाद जदों करने वास्ते आया चरनां ते नतमस्तक होया। गरीब नवाज हुण बाकी दी जिंदगी आप दी। मैनूं दस्सण वाले दसदे ने जी कि मैं उस टाइम विरागी हो गया सी क्योंकि सतगुरु उदय सिंह जी दे रूप जिहड़ा सी उस टाइम सतगुरु जगजीत सिंह जी खड़े सी मेरे सामने।
मैं हथ जोड़ के कहा, मैं सच्चे पातशाह जी मेरे को अल्फाज नहीं है कि मैं तुहाडा धन्नवाद कर सका। अज एक साहब नूं ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਕਦੇ ਇਸ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ।